Hello and welcome to the Legacy IAS. So today the session I am going to discuss about last minute tips for the UPSC prelims 2025. As we already know that UPSC prelims exam basically on 25th May, that is upcoming Sunday. So I am not going to take much time here, is that means the video will not be like, for example, 50 minutes or 30 minutes. I am going to complete this video as soon as possible so that you can again start studying whatever you are doing already. So in the last minute tips, actually what you should do, that I am going to discuss over here. See, first important thing is this: before the exam, first important thing that you have to take care of before the exam, you have to take a proper quality sleep, that is around 7 to 8 hours of uninterrupted sleep. See, last day of the exam, that is before this exam day, that means that night, you should not revise too much, you should not study too much. I can guarantee that whatever you are going to study on that particular day, it will not going to come to the exam. Basically no questions will come from that part. Whatever you have studied already in the last, for example, 1.5 year or 2 year, the questions will come from that part only. So that means whatever you are going to study one night before the exam, it is not going to help you much. Honestly speaking, myself has appeared already in the exam many times, for example 3 times in the prelims exam already. So I know that particular thing is this, it is not going to help, whatever you have studied in the last night. Even though you are not going to study anything, still your marks will remain same only. So because of that reason, is my humble request is, before the exam at least take 7 to 8 hours of uninterrupted sleep. Because if you are not going to take that much of sleep, see, it is not going to impact much your GS paper 1, but definitely it is going to impact your CSAT paper. Because in the CSAT paper, basically afternoon, it will be a lot of stress, that is on you. You will feel difficult to read the entire paragraph over there in the CSAT paper. So your score will going to reduce in the CSAT paper, and that is a qualifying in nature. That means it is very difficult then to cross 67 marks over there. So take care of this 7 to 8 hours sleeps. And whenever you are going, take a balanced breakfast also before the exam. You should not consume too much. Your focus should be on protein intake much, because if protein is there, you will feel energetic and little bit calm. And then next important, early arrival. So आप क्या कर सकते हो, you can open the Google map, and Google map में क्या करना है कि what is your current location is, whatever your center location is, आप उसमें fill कर दो. एंड उसी गूगल मैप पर देखना साइड में फॉर एग्जांपल 3 डॉट होंगे, इन 3 डॉट को क्लिक करके देयर इज वन ऑप्शन इज अराइवल टाइम. आप उसमें लिख दो कि आई नीड टू रीच टू द एग्जाम सेंटर बाय दिस पर्टिकुलर टाइम, लाइक 9 AM और 8:30 AM. गूगल आपको बता देगा, गूगल विल टेल यू एट व्हाट टाइम यू हैव टू लीव योर लोकेशन. So you need to reach as early as possible. For example, those who are in metro cities, for example in Bangalore, because of rainfall and because of traffic issues also, sometimes it feels difficult to reach the exam on time. So it is going to create an extra stress on you. So you should avoid all these things. बेटर है आप एग्जाम हॉल में अगर आप 45 मिनट्स पहले पहुंच गए हो, दैट इज ऑलवेज ए बेस्ट थिंग फॉर यू. सो ऑलवेज, बिकॉज familiarity reduces anxiety and primes your brain. क्योंकि अब आप 1 hour पहले उस एग्जाम हॉल में पहुंच गए, ऑलरेडी 1 hour before in the exam hall. So it is going to help you basically, because now you are familiarized with that environment. So do this also. Clear? नेक्स्ट थिंग इज, फर्स्ट जैसे ही आपको फॉर एग्जाम्पल यू विल गेट द पेपर, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आएगा, फॉर एग्जाम्पल जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ध्यान रखना एग्जाम हॉल में जाने से पहले यू शुड कैरी प्रॉपर योर ID कार्ड, आपके पास होना चाहिए. डोंट फॉरगेट, कीप ऑल दीज थिंग्स रेडी 1 night बिफोर इटसेल्फ. आपके पास बॉल पॉइंट जो पेन होगा, बॉल पेन, दैट शुड बी देयर. एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए. एडमिट कार्ड में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, रीड केयरफुली दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस 1 night बिफोर इटसेल्फ. क्या आप ले जा सकते हो, क्या नहीं ले जा सकते हो, दीज थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड बाई रीडिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस. फिर आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे, एग्जाम हॉल में when you will get the paper, immediately you should not start solving that paper. Take at least 2 minute time over there.
ऐसा ना हो फॉर एग्जांपल जैसे आपको सेट ए या सेट बी सेट सी मिला और इमीडिएटली आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू कर दिया. यू शुड नॉट डू दिस. मे बी पॉसिबल रीजन इज दिस. फॉर एग्जाम्पल आपको एक सेट सी मिला और उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 इट इज फॉर एग्जाम्पल बिलोंग्स टू ओके एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री. अब एकदम आपको ऐसा स्ट्रेस फील होगा कि आई हैव नॉट स्टडीड दिस मिडिवल हिस्ट्री, कहाँ से क्वेश्चन आ गया. यू विल फील दैट एंटायर पेपर इज डिफिकल्ट. ऐसा नहीं होता है. तो दैट इज द रीजन. फर्स्ट थिंग इज स्कैन द पेपर. दैट मीन्स take 2 minutes to flip through entire question paper. This provide mental mapping. क्यों? जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर को फ्लिप करते जाओगे you will see the questions that belongs to the polity. आपको अच्छा लगेगा कि यस ये पॉलिटी के क्वेश्चंस इजी हैं. फॉर एग्जांपल you will see the word of president, you will see the term like parliament, you will see the term like money bill. So आपको अच्छा लगेगा. Then you will move to the economy, आपको दिख जाएगा, geography दिख जाएगा. Then you will feel that कि yes question number 1 was difficult but in between there are many of the questions are there that you can easily solve them. So take 2 minutes to flip through that things. ठीक है. उसके बाद आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ. सी सबका एक अपना स्ट्रेंथ होता है. सो हाउ यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. सी जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा. सो वन थिंग आई विल टेल यू, यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर होता है, सपोज एग्जांपल इफ दे स्टार्ट विद एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, देन उनके ना 3 to 4 क्वेश्चन एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के आएंगे. देन सपोज एग्जांपल दे स्टार्ट विद मॉडर्न हिस्ट्री, तो जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे दे विल बी टुगेदर ओनली. देन फॉर एग्जांपल दे स्टार्ट विद पॉलिटी, सो जितने भी इंडियन पॉलिटी के लाइक 15 to 16 क्वेश्चन विल बी देयर. ऑल द 15-16 क्वेश्चन दे विल बी इन वन रो इटसेल्फ, वन ओके ऑर्डर इटसेल्फ यू विल गेट एंटायर. सो जैसे आपको क्वेश्चन पेपर फ्लिप करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यू सी दैट क्वेश्चन जो फर्स्ट है स्टार्ट है लाइक पॉलिटी, जस्ट राइट ओवर देयर पॉलिटी. Then for example you flip the paper, okay, and then for example you notice okay economy का क्वेश्चन आ गया, just write economy. So क्या होगा, this way you are going to divide the paper into different section. Understood? You are going to divide the paper into different section like polity, like economy, like geography, like science and tech, like environment. Okay, in this way you just whenever you are flipping the paper, just divide that paper into different sections, different subject. अब क्या होता है कि now you need to choose what is your strength. Like for example, if your strength is like polity, then solve polity first. क्योंकि अभी क्या आपका माइंड कूल है, करेक्ट है ना, तो काम है, तो सब फर्स्ट यू स्टार्ट सॉल्विंग पॉलिटी. सेकंड फॉर एग्जांपल योर स्ट्रेंथ इज लाइक फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, देन सॉल्व ज्योग्राफी. देन फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इज कम इकोनॉमी, देन सॉल्व इकोनॉमी सेक्शंस. देन फॉर एग्जांपल कम्स लाइक एनवायरनमेंट, देन सॉल्व एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक. देन एनवायरनमेंट, देन एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व. ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेंडमली आप सॉल्व कर रहे हो कि पहला क्वेश्चन एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री का है एंड दैट इज नॉट योर स्ट्रेंथ, यू स्टार्ट सॉल्विंग दैट क्वेश्चन. क्या होगा, यू विल नॉट गेट द राइट आंसर इमीडिएटली. तो आपको क्या होगा ना कि आपको ऐसा लगेगा अरे ये पेपर बहुत डिफिकल्ट है ना, तो यू शुड नॉट डू दिस. तो मैंने वही चीज बताया आपको, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ. दैट मीन्स सेक्शन बाय सेक्शन जब भी फ्लिप करोगे पेपर को डिवाइड करो एंड देन इफ योर स्ट्रेंथ इज पॉलिटी देन सॉल्व ऑल द पॉलिटी क्वेश्चंस immediately. Correct? So polity questions सारे जितने भी 15 होंगे they will be together only. Solve them first. If they are not together, like for example 10 questions there and another 10 questions okay another part of that paper, then वहाँ पे भी लिख दो polity 1, polity 2. तो आपको एक section by you can divide the paper. I will show you. मैं आपको last year का prelims paper दिखाऊंगा, then I will show you how you have to do all these things. Then so because I told you note their locations, quickly identify questions from your strongest subject, note their locations. उनकी लोकेशन आपने डाल दी. Stay calm. If difficult sections appear first, don't panic. You have already located your comfort zone. Understood or not? If difficult sections अगर आपको सबसे पहले दिखता है तो don't panic because already you located your comfort zone also. तो ये आपको next काम करना है. उसके बाद next thing is this, स्माइल प्लस स्टार्ट स्मार्ट. क्योंकि आपको पेपर देख के ऐसा नहीं होना है कि जैसे आपने देखा क्वेश्चन लुक्स डिफिकल्ट यू गॉट पैनिक. नो, सी अगर पेपर डिफिकल्ट है देन दिस पेपर डिफिकल्ट विल बी फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट. मोस्ट ऑफ नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऑल ऑफ द स्टूडेंट. सी अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट है देन कट ऑफ ऑटोमेटिकली विल गोइंग टू रिड्यूस. सो ऐसा नहीं है कि ओनली योर मार्क्स इज गोइंग टू रिड्यूस, एवरीवन्स मार्क्स इज गोइंग टू रिड्यूस एंड ऑटोमेटिकली कट ऑफ विल गोइंग टू बी रिड्यूस आल्सो. सो दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट पेपर इज डिफिकल्ट और पेपर इज इजी. तो स्माइल एंड स्माइल डेलिबरेटली. जैसे ही आप खुश रहो, वो स्माइलिंग रिड्यूसेस कोर्टिसोल लेवल्स and triggers positive brain chemicals. Understood or not? This is scientifically proven चीज है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ.
कि कोई भी बोल दिया दिस इज द रियलिटीज, सो कीप स्माइलिंग, कुछ भी हो, कैसा भी सिचुएशन हो, बी काम, बी स्माइल, डू स्माइल, करेक्ट। बिगिन विद स्ट्रेंथ, स्टार्ट विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड मोमेंटम। आई टोल्ड यू कि अगर आपका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट इज इंडियन पॉलिटी, देन स्टार्ट विथ इंडियन पॉलिटी ओनली। सेकंड इन लाइन इन ज्योग्राफी, देन स्टार्ट विथ ज्योग्राफी, देन इकोनॉमी, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन एनवायरनमेंट। जो भी आपका क्रम हो, क्योंकि आपने लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज सॉल्व किया, तो यू नो दैट व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, योर फर्स्ट आंसर चॉइस इज ऑफन करेक्ट फॉर फैमिलियर टॉपिक्स। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन देखा, करेक्ट, यू हैव सीन वन क्वेश्चन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू लेटर दिस थिंग, आई विल टेल यू लेटर कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन देखा, उसमें ऑप्शन दिया ए बी सी डी, कोई ऑप्शन दिया ए बी सी डी, एंड आपको पहली बार में लगा कि करेक्ट आंसर इज डी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है एंड 4 ऑप्शंस आर देयर ए बी सी डी, एंड जैसे आपने पहली बार फर्स्ट रीडिंग में यू थॉट दैट की correct answer is option D, correct, but again then you put more actually effort and you start okay doing lot of research कि क्या right answer हो सकता है, then it came to know कि नहीं answer is B। सी जो भी आपको पहली बार में लगेगा ना, फर्स्ट में लगेगा आपको पहली बार में डी लगा था ना, देन गो विथ डी ओनली, यू शुड नॉट चेंज योर आंसर फ्रॉम डी टू बी। ध्यान रखना, इवन दो आपको लग रहा है ना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में इट हैज बीन सीन कि जो आपका पहली बार में जो आपको लगता है फर्स्ट इंस्टिंक्ट में जो आंसर लगेगा ना, दैट विल बी द राइट आंसर, करेक्ट है ना। और उसके बाद ये नहीं आपको डी लगा, बाद में आपने और पढ़ा, फिर लगा नहीं डी नहीं हो सकता है, बी हो सकता है, यू चेंज, डोंट डू दिस, करेक्ट। नेक्स्ट थिंग इज दिस, ओके, 2 राउंड अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या है। राउंड 1 में आपको क्या करना है, राउंड 1 जो आप सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं होगा एक ही राउंड में यू आर गोइंग टू सॉल्व एंटायर पेपर, नो। राउंड 1 में आंसर ओनली 100% कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस, मार्क दीज इमीडिएटली ऑन द OMR शीट। सी जब आप सॉल्व कर रहे हो, आई टोल्ड यू विल स्टार्ट विथ योर कंफर्ट जोन ओनली। सो सबसे पहले यू हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चन जहां पे यू नो 100% आंसर, कि इसका आंसर यही है, दैट्स इट, सॉल्व देम। एंड जैसे ही सॉल्व करोगे, लाइक एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 8 से पॉलिटी स्टार्ट हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 8 आपने सॉल्व किया, इमीडिएटली फिल द OMR शीट देयर इटसेल्फ। जो क्वेश्चन नंबर 8 के अगेंस्ट जो बबल है, जस्ट वो बबल भरो। ऐसा मत करो कि फर्स्ट यू आर गोइंग टू सॉल्व लाइक 10 क्वेश्चंस, देन यू आर गोइंग टू फिल द बबल। रीजन इज उससे प्रॉब्लम क्या हो गया, आई विल टेल यू what issue you are going to face if you do this। कि for example question number 8 is there, 9 is there, 10 is there, 11 is there, यहाँ पे ये बबल रखे हुए हैं, करेक्ट, this A B C D के ये these are the bubbles in OMR sheet। अब इसका दिक्कत ये है कि like for example आपने क्या किया, आप बोले कि एट वंस 10 के हम बबल भरेंगे। अब 10 में क्या हुआ कि लाइक क्वेश्चन नंबर 10 का बबल भरना है, बट यू हैव फिल्ड क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इसमें धर दिया 11 में, 11 का आपने 12 में कर दिया, टोटल आपका ऑर्डर खराब हो गया। लेकिन इफ यू डू वन बाई वन क्या होगा, लाइक एग्जांपल यू हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में आपको लगा कि राइट आंसर इज डी, आपने डी भर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में लगा आपको आंसर इज बी, आपने बी भर दिया। अब आप क्या इमीडिएटली आप देख रहे हो ना कि हम 9 के अगेंस्ट ही भर रहे हैं, 8 के अगेंस्ट ही भर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे एनी मिस्टेक इज गोइंग टू हैपन, दैट मिस्टेक विल हैपन ओनली इन वन क्वेश्चन, दैट्स इट, but not entirely। and since you are going to fill these bubbles not with the pencil but ball point pen, जिसको इरेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, तो that is the reason is always answer only those questions जो 100% you know that कि this is the answer, और immediately mark the bubble also। you should not wait that कि first I am going to solve all the questions then only I will fill the bubbles, okay, in the OMR sheet। you should not make this mistake at all। मैं आपको फिर से हम्बल रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ कि जैसे ही आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 8 सॉल्व किया, इफ यू गॉट द आंसर इमीडिएटली फिल द OMR देयर बबल, देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9, जैसे आपको आंसर मिला फिल दैट, करेक्ट। क्योंकि इन 100% जो भी आंसर्स आपको लग रहे हैं कि यू नो दैट 100% आंसर इज देयर, डोंट कम बैक अगेन टू रिवाइज। मैंने देखा है लोगों को, स्टूडेंट को यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, लाइक इन 100 क्वेश्चन जो आपको लग रहा है ना, यू आर अगेन कमिंग बैक एंड अगेन स्टार्ट रीडिंग दोट क्वेश्चन, अगेन चेंजिंग द आंसर्स। यू शुड नॉट डू दिस। राउंड 1 में एक बार क्लियर हो गया, देन डोंट कम अगेन हियर। देन कम्स टू राउंड 2। राउंड 2 में क्या होता है, टैकल दोस 50-50 प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, अप्लाई एलिमिनेशन टेक्निक केयरफुली। यहां पे क्या करोगे, फॉर एग्जांपल व्हाट यू विल डू इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लाइक फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस आर A B C D, करेक्ट, दीज आर ऑप्शंस।
आपको लग रहा है डेफिनेटली ए इज नॉट द राइट आंसर, आपको लग रहा है डी इज नॉट द राइट आंसर, आइदर बी इज द राइट आंसर और सी इज द राइट आंसर, तो इसकी अगेंस्ट यहीं पे यू जस्ट राइट दिस आइदर बी और सी, और इसको छोड़ दो, करेक्ट है, इसको छोड़ दो, दैट्स इट, करेक्ट है। और इसको ज्यादा है, आप ऐसे करके इसमें एक राउंड बना दो कि ये फर्स्ट स्टार में, जब सेकंड राउंड में आएंगे तो यू आर गोइंग टू टेक दिस एज द फर्स्ट प्रायोरिटी, और जो ये वाले जो राउंड 1 वाले थे उसके अगेंस्ट आप ऐसा टिक मार्क लगाओ, टिक मार्क इन द सेंस कि ये आपने मार्क लगा दिया, इसका मतलब दिस ऑलरेडी डन, यू शुड नॉट कम अगेन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे आपने क्या किया, ए बी सी डी है, आपको लगा बी और सी कैन बी पॉसिबल, तो जस्ट राइट बी और सी लाइक दिस, क्योंकि जब आप अनदर राउंड में आओगे ना, अनदर सेकेंड राउंड में इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, तो आपको अगेन फिर से ए पे दिमाग नहीं लगाना है, डी पे दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्टली यू हैव टू फोकस इंटायर थिंग्स, आइदर बी और सी में आई नीड टू चूज वन, तो कौन राइट आंसर हो सकता है। सेम फॉर एग्जांपल कि लाइक एग्जांपल आपको ऐसा लग रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी ये है, लेकिन आपको ये पता है कि ए इज नॉट द राइट आंसर, आंसर कैन बी बी, आंसर कैन बी सी, आंसर कैन बी डी, आप यहाँ पे लिख दो इसके अगेंस्ट बी सी डी, और इसके अगेंस्ट आप ऐसा 2 मार्क लगा दो, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे। अब अगेन यहाँ पे जैसे ही आप आओगे ना, तो आप क्लियर होना कि ए इज नॉट द आंसर, यहाँ पे आइदर बी और आइदर सी और डी है, तो जब सेकंड राउंड या थर्ड राउंड व्हेन यू कम ओवर देयर टू विजिट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो यू कैन सॉल्व इजीली देम, करेक्ट। सो ट्रैकिंग सिस्टम, मतलब मैंने बोला आपको सिंबल बनाना है, तो ये आप इस तरह सिंबल बना सकते हो कि अगर जो 50-50 वाले हो उसमें एक स्टार बना दिया, जिसमें कि फॉर एग्जांपल 100% यू नो दैट 1 इज नॉट द राइट आंसर एंड 3 ऑप्शंस में एटलीस्ट 1 कैन बी द राइट आंसर, वहाँ पे आप 2 स्टार बना लो। और जहाँ पे आपको एक भी नहीं पता है कि यू डू नॉट नो वेदर आंसर इज ए और बी और सी और डी, डोंट टच देम, जस्ट रीड देम एंड जस्ट उसके अगेंस्ट क्रॉस बना दो। क्रॉस मतलब ये हमें पढ़ना ही नहीं है, बिकॉज I do not know at all about this particular question. Just leave that part. Clear? Then OMR plus CSAT breaking. Real time bubbling, I told you, mark OMR sheet immediately. जैसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिले immediately मार्क करो after solving each question. This prevents last minute rush error. ये होता है लोग, आपको लग रहा होगा it is not happening. It happened actually with many. Avoid answer checking. Don't discuss or check answers during the break. This prevents unnecessary stress. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका GS पेपर 1 डन, अब GS पेपर डन के बाद when you come outside of the classroom, others or individuals are also there. अब वो डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने 18 किए, आपने 90 किए, और तो डोंट डिस्कस विद देम, ओके। कोई भी सही नहीं बोलता है, मैं आपको बता दूं, जहाँ पे कई ऐसे स्टूडेंट होंगे दे विल से दैट कि सर मैंने तो भाई 100 क्वेश्चन सॉल्व किया है, और आपको लगा ओ आई एम एबल टू सॉल्व ओनली 70 क्वेश्चंस एंड दिस गाय इज एबल टू सॉल्व 100 क्वेश्चन, दैट मीन्स कट ऑफ इज गोइंग टू हाई। प्लीज डोंट बिलीव दोज गाइज। जिसने भी, जो सीरियस गाय होगा उसने अगर 70 भी किए होंगे, he will not going to disclose it, so don't discuss with anyone, don't discuss about the cut off, ये cut off game आपको नहीं खेलना है during the break time. So during the break time don't discuss the question, during the break time don't discuss about the cut off, don't discuss about how many questions other has solved, don't discuss how many questions we have solved. Strategy break time होता है, eat something light during that time, जब आपका ब्रेक होता है between GS paper 1 and CSAT क्वेश्चन, rest your eyes and briefly review CSAT concept. अगर आपको जो फार्मूला वगैरह हैं वो आपको पढ़ने तो आप पढ़ सकते हो, that's it, ठीक है। CSAT after the exam, start with comfort zone in CSAT also, like begin CSAT with your strongest section, जो भी आपका strong section हो, आपको comprehension अच्छा लगता है, quant अच्छा लगता है, आपके हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो। aim for 80 marks, ओके आपको यहाँ पर 200, यू शुड नॉट एम फॉर 100 200 मार्क्स 150 मार्क्स, अगर आपके 80 मार्क्स भी आ गए तो डेफिनेटली इट इज फाइन। आई विल नॉट से दैट यू हैव टू एम फॉर 70 मार्क्स और 67 मार्क्स, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल 1 or 2 silly mistakes is going to reduce your chance to clear the exam. So better is if you aim for 80 marks, if you aim for 90 marks, that is much better than, correct? This you have to do in. And post exam avoid immediately answer analysis, ये सब नहीं करना है, ठीक है, ये सब आपको नहीं करना है। यस जब आप एग्जाम के बाहर आ जाओगे, घर आ जाओगे, उसके बाद इफ यू वांट टू चेक योर आंसर कीज, डेफिनेटली लेगेसी IAS विल गोइंग टू प्रोवाइड आंसर एनालिसिस, ये ओके आपको उसी दिन मिल जाएगा। यहाँ पे बेस्ट जो है ना कट ऑफ आपका एनालिसिस वो भी यहाँ पे मिल जाएगा लेगेसी IAS में चैनल पे। जो कुछ भी हो एवरीथिंग आपको यूट्यूब चैनल पे आना है, यहाँ पे यू विल गेट एवरीथिंग ओवर हियर, करेक्ट।
सो दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। समरी आपको क्या है, स्माइल स्ट्रेटजी, रिड्यूस एंजाइटी एंड कोर्टिसोल लेवल्स, पेपर स्कैनिंग करना है, क्रिएट मेंटल मैप, 2 राउंड थ्योरी आपको करना है, स्ट्रेंथ एंड अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट समटाइम्स पूछते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व, मैक्सिमम टाइम कि हमको कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है। सी इन जीएस पेपर 1 अगर आप देखो तो कट ऑफ है, कट ऑफ मोस्टली होवर आपकी कर रही है, लाइक एग्जांपल आप 80 से लेकर 95 मार्क्स ले लो। हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, 80 टू 95 मार्क्स में कट ऑफ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस 2024 में लाइक 88 मार्क्स गया, ठीक है, उससे पहले लाइक कुछ और गया, तो ऐसे करके 80 टू 95 होता है। सी जो मोस्ट ऑफ द टॉपर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स दे बेसिकली एम फॉर 68 टू 70 क्वेश्चंस। ध्यान रखना कितना एम करना है आपको, 68 से लेके 78 क्वेश्चंस को भी आपको एम करना है। यू शुड नॉट एम टू मच बेसिकली, करेक्ट, बिकॉज अगर आप 68 और 78 क्वेश्चंस को एम करोगे एंड योर एक्यूरेसी लेवल इज अराउंड 70 to 80%, फॉर एग्जाम्पल इफ एक्यूरेसी is 70 to 80%, still your score will be around 90 to 110. 90 to 110. So you should stay away from those YouTube videos, from those fake influencers जो ये बोलते हैं कि टोटल आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। डोंट डू दिस, क्योंकि अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व किए देन एक्यूरेसी आपकी 70 to 80% नहीं रहेगी, देन योर एक्यूरेसी विल गोइंग टू रिड्यूस बेसिकली। सो दिस एक्यूरेसी विल गोइंग टू रिड्यूस टू 60% ओनली। अगर एक्यूरेसी 60% हो गया देन योर फाइनल मार्क्स विल बी अराउंड 80 और बिलो दैट, ओनली 80 मार्क्स। और वहीं पे अगर 68 78 है, योर एक्यूरेसी लेवल विल वेरी हाई। सी जब भी आप सॉल्व करोगे फर्स्ट राउंड में, आई टोल्ड यू फर्स्ट राउंड इन द सेंस दैट राउंड जहां पे आपको 100% पता है कि आंसर क्या है, यू विल बी एबल टू सॉल्व अराउंड 40 क्वेश्चन इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। कितना, 40, इससे ज्यादा नहीं होता है, ध्यान रखना। इफ यू थिंक दैट कि एनी अदर गाय इज गोइंग टू हैव इन द फर्स्ट राउंड मोर देन 40, देन अगेन ही इज जस्ट लाइंग। 40 आप पे होगा, कितना, 40। तो 40 मीन्स जहां पे एक्यूरेसी आपका 90 to 95% रहेगा, मतलब 1 से 40 आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे एक्यूरेसी आपका लगभग 95% तक रहेगा, क्योंकि यू नो 100% व्हाट इज आंसर। और वो क्वेश्चन इजी भी होंगे। इजी क्यों होंगे, वहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, ओनली 4 ऑप्शंस आर देयर, एलिमिनेशन मेथड्स आर देयर, दैट यू कैन यूटिलाइज। उसके बाद जो आप 40 to 60 जाओगे, ये वो वाले क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपका 50-50 का चांस था, 50-50 का, आइदर बी और सी। यहाँ पे और एक्यूरेसी फॉर एग्जांपल विल बी लाइक 80%, फॉर एग्जांपल 80%, ओके, 80% एक्यूरेसी कैन बी देयर, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड्स ऑल्सो। उसके बाद फॉर एग्जांपल व्हेन यू 60 से लेके फॉर एग्जांपल 75 जाओगे, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, अगेन 50 to 50 है, बट यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट व्हाट कैन बी द आंसर इज देयर। यू आर गोइंग टू यूज लॉट ऑफ गैस, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट सम extreme words over there, you are going to use your in the intuitive analysis, whatever instinct आप use करोगे, so accuracy level will be like 70% here. So by this way if you solve, still your marks can go around 90 easily, correct or not, 90 easily. So that is how always aim for this only, 68 to 78, maximum 80, don't go above 80, because it is a prelims exam, main aim is to clear the prelims exam. Your target is not, basically your target ये नहीं है कि how much you should be the topper, like आपके 120 130 140 मार्क्स आने चाहिए जीएस पेपर 1 में, that is not your target, so you should focus like this only. अब next thing is like for example when you see the question paper, like example, okay, this is the like question paper, okay, you will get like this, ओके। सो यहाँ पे देखना नेगेटिव मार्किंग होता है, ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग इज देयर। अब जैसे फॉर एग्जांपल दिस वे यू आर गोइंग टू गेट द पेपर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, दिस वे। अब जैसे फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन नंबर 1 यू गॉट इट, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, ऐसा करके, ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैस इन एटमॉस्फेयर आर गुड एट बोथ फॉर लॉन्ग वेव रेडिएशंस, ऐसा। तो देखो लॉन्ग वेव रेडिएशंस ये सारा है, तो आपको लगा कि ये ज्योग्राफी का है फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट, यू थॉट दैट दिस बिलोंग टू ज्योग्राफी, करेक्ट। सो राइट डाउन फॉर एग्जाम्पल हियर, आप लिख लो कि ये जो सेक्शन है वो ज्योग्राफी सेक्शन है, ऐसा करके, ठीक है। आप अनदर पे जाओगे फॉर एग्जाम्पल, लिखो ये ज्योग्राफी ज्योग्राफी ज्योग्राफी, तो एक साथ आपको सारे ज्योग्राफी के मिल जाएंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन डिवाइड इट। अब जैसे इसमें है ए बी सी डी, आपको ये लग रहा है फॉर एग्जाम्पल यू थिंक दैट कि ए इज नॉट द आंसर, बी इज नॉट द आंसर, आपको लग रहा है बी एंड सी इज द आंसर, तो आपको क्या करना है, जस्ट राइट दो बी एंड सी दिस वे।
तो अब जब और इसको ऐसा एक स्टार मार्क लगा दो। अब सेकेंड राउंड में जब आओगे ना तो आपको सिर्फ बी एंड सी स्टेटमेंट चेक करना है, दैट्स इट, कि व्हाट कैन बी द आंसर, जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिस टाइप के क्वेश्चंस में, करेक्ट। सो इन टाइप क्वेश्चन में बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वन इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ऐसा करके आपको देख लेना है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट इज, अगर फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, है ना, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल दिस, एंड स्टेटमेंट 1 जो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। सो आपको जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पहला इसको स्टेटमेंट सेकंड पढ़ना है। स्टेटमेंट सेकंड क्यों पढ़ना है इस टाइप के क्वेश्चन में, स्टेटमेंट 2 में? अगर आप सेकंड पढ़ रहे हो ना, इफ यू रीडिंग सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट ट्राई टू आंसर वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट इंडिपेंडेंटली। अगर ये इंडिपेंडेंटली करेक्ट स्टेटमेंट है या इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इफ इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली, ओके, देन ओनली यू गो विद स्टेटमेंट 1, देन करेक्ट हो कि नहीं? लेकिन 1 भी नहीं जाना है, बिकॉज अगर स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट देन ऑटोमेटिकली योर आंसर कैन बी लाइक दिस वन, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर। एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आप देखो फॉर एग्जांपल सब ज्योग्राफी के आपके आ रहे हैं, ज्योग्राफी सेक्शन, एंड देन फॉर एग्जांपल आप अगेन मूव किए और अनदर कोई आ गया, लाइक फॉर एग्जांपल सी आपको फॉर एग्जांपल ये आ गया है इन्वायरमेंट, लाइक एग्जांपल दिस इज फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट से स्टार्ट हो गया, तो अगेन राइट इन्वायरमेंट ओवर दिया। सो दिस इज हाउ यू कैन डिवाइड सेक्शन बाई सेक्शन, करेक्ट है कि नहीं? अब जैसे इसमें होते हैं ओनली 2 ओनली 3, इसमें देखना है आपको कि कौन सा करेक्ट है, आपको ऐसे सॉल्व करना है कि दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, ऐसे करके ही सॉल्व करना है। सो यू विल अंडरस्टैंड हाँ कि ये आपको आंसर हो सकता है, दिस कैन बी द आंसर, देन यू कैन इजिली फाइंड आउट द आंसर। सो दैट इज हाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो ओवर देयर, कि आपको पूरा पेपर है, यू हैव टू डिवाइड द पेपर इनटू डिफरेंट सेक्शंस एंड देन आफ्टर सेक्शंस के बाद यू हैव टू सॉल्व एंड यू हैव टू एम फॉर 68 to 78 एंड उसके बाद जब आपका पेपर हो जाए, अगेन डोंट डिस्कस विद एनीवन। अगर पेपर डिफिकल्ट होगा, जैसे मैंने पहले बोला था, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, कट ऑफ विल गोइंग टू रिड्यूस फॉर एवरीवन, यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। ये पेपर इजी है तो सबके लिए इजी होगा, कट ऑफ विल गोइंग टू इंप्रूव देन एटलीस्ट फॉर 3 to 4 मार्क्स ओनली, करेक्ट, इससे ज़्यादा नहीं होता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ज़्यादा नहीं सोचना है, एग्जाम से एक दिन पहले लाइट रहो, कोई कॉमेडी मूवी देख लो, हंसो, जितना हंसोगे, खेलोगे, कूदोगे, एकदम मौज काटो, देन योर पेपर विल बी गुड। डोंट टेक स्ट्रेस इन द लास्ट डे, डोंट रीड टू मच, डोंट रिवाइज एनीथिंग, ओके, दैट इज completely new, don't read anything new. If somewhere you are getting messages like these are the top 25 questions that can be asked in the UPSC एग्जाम, ऐसा आप टेलीग्राम चैनल वगैरह में कई सारे PDF आते होंगे कि इन्वायरमेंट से ये 25 क्वेश्चंस आ सकते हैं। डोंट रीड एनीथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैं सीरियसली आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद लेगेसी IAS में ही फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब वीडियो भी है जिसमें फॉर एग्जांपल सर ने एक्सप्लेन किया सम ट्रिक्स, ओके, ऑफ एलिमिनेशन मेथड्स, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। दैट्स इट फॉर टुडे, सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और जब आपके एग्जाम हो जाए, करेक्ट, उसके बाद आप यूट्यूब चैनल में फिर से आ सकते हो हमारे, एंड यहाँ पे यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस एंड यू विल गेट द आंसर की ऑल्सो। थैंक यू।